السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ریاست کرناٹک میں حکومت کی جانب سے تمام اسکولوں میں یوگا کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کرناٹک حکومت نے ریاست کے تمام پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے انتظامات کو ہدایت جاری کی کہ وہ روزانہ 10 منٹ کے لیے یوگا کے سیشنز منعقد کریں۔ یہ فیصلہ طلباء کی قوت برداشت اور ارتکاز کو بہتر بنانے اور ان کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ کرناٹک کے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے وزیر بی سی ناگیش نے ایک خط کے اشتراک کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں میں روزانہ یوگا جسمانی اور ذہنی تناؤ کو کم کرنے، قوت برداشت، صحت کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے ریاست کے پرائمری اسکول کے طلباء کی ضرورت ہے۔ وزیر نے کہا کہ اس سے طلباء کو مثبت رویہ، اچھی عادت پیدا کرنا اور اچھے شہری بننے میں مدد ملتی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف کئی ماہرین تعلیم نے وزیر تعلیم کو مکتوب لکھا ہے کہ جس میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ ریاستی حکومت آئین، دستور اور سیکولرزم کی حدود میں رہ کر فیصلہ لے، نہ کہ ایک طرف فیصلہ لیتے ہوئے یوگا اور مراقبہ جیسی سرگرمیوں کو عمل میں نہ لائے۔ ڈاکٹر بی وی بھنڈاری، پروفیسر نرنجن آرادھیا، ڈاکٹر ایس جی سدھارمیہ، ڈاکٹر وجے امّا، ڈاکٹر سرینواس جیسے سینئر ماہرین تعلیم نے وزیر تعلیم کو لکھے ہوئے مکتوب میں کہا ہے کہ یوگا جیسے عمل سے بچوں کی صحت بہتر ہوگی، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوا ہے۔ موبائل کی عادت سے چھٹکارا دلانے کے لیے دھیان لگانے کیا جائے تو بچوں پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا۔ گجرات کے موریبی کا پل حادثہ کئی جانیں لینے کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ عوام کے ذہنوں میں نقش ہو گیا ہے کہ کس طرح حکومتی لاپرواہی اور بے حسی نے ان کے اپنوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ یہ حادثہ گجرات الیکشن سے عین قبل جہاں بی جے پی کا اقتدار ختم ہونے کا ٹریگر بن سکتا ہے، وہیں اس پر حکومتی اور سیاسی سطح پر خاموشی اختیار کرنے کی حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر ایک طرف موریبی حادثے پر سیاسی و حکومتی سطح پر خاموشی برتی جا رہی ہے تو دوسری طرف سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہے۔ گجرات میں مقابلہ سہ رخی قرار دیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کانگریس جہاں براہ راست مقابلہ کر رہے ہیں، وہیں عام آدمی پارٹی بھی اہم فریق بن کر ابھر رہی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے ایسودان گڑھوی کو عام آدمی پارٹی کا وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے۔ کیجریوال نے احمد آباد میں منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ کے امیدوار کے نام کا اعلان کیا۔ ملکارجن کھڑگے کے صدر بننے کے بعد سے کانگریس میں نئی جان آ گئی ہے، کیونکہ ایک طرف تو بھارت جوڑو یاترا کو پورے ملک کی حمایت مل رہی ہے تو دوسری طرف پارٹی نے گجرات میں اقتدار میں واپس آنے کے لیے ایک ساتھ 5 پریورتن سنکلپ یاترائیں لانچ کر دی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی صدارت میں گجرات بی جے پی کی اہم میٹنگ منعقد کی گئی جس میں ریاست کے وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل بھی شامل تھے۔ ذرائع کی فراہم کردہ اطلاع کے مطابق اس میٹنگ میں موریبی حادثے کے بعد کے حالات اور بی جے پی کے تئیں ووٹرز کے ممکنہ رویے پر گفتگو کی گئی۔ امیت شاہ نے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے میٹنگ میں موجود وزیر اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت جاری کی کہ وہ پارٹی کو فتح دلانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں، کیونکہ اپوزیشن پارٹی موریبی حادثے کو اہم موضوع بنائے گی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو خاص طور پر ہدایت دی کہ وہ حادثے کے تمام متاثرین کی باضابط کاری اور مالی مدد کے معاملے کو ذاتی طور پر دیکھیں اور ان مسائل کو حل کروائیں۔ اس دوران انہوں نے اسمبلی الیکشن کے لیے ممکنہ امیدواروں کے ناموں پر بھی غور کیا۔ بدنام زمانہ بھگوا لیڈر یتی نرسمہانند، جو اس سے قبل بھی دھرم سنسد منعقد کر کے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کر چکا ہے، اس مرتبہ اتر پردیش میں دھرم سنسد کے انعقاد پر بضد ہے۔ اسے اتر پردیش پولیس کی جانب سے نوٹس دیا جا چکا ہے کہ وہ غازی آباد میں دھرم سنسد کا انعقاد نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے پیشگی اجازت نہیں لی ہے۔ دوسری طرف یتی نرسمہانند بضد ہے کہ وہ ہر حال میں 17 دسمبر سے سہ روزہ دھرم سنسد کا انعقاد کرے گا اور اگر کوئی اسے روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ اس نے پولیس کا نوٹس ملنے کی تصدیق کی اور کہا کہ ہمیں اپنے دھرم کے پرچار کے لیے کسی پولیس یا حکومت کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہر حال میں دھرم سنسد کا انعقاد کریں گے۔ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اسے دیکھ لیا جائے گا۔ گجرات میں موریبی پل کے دلخراش حادثے میں اپنوں کو کھونے والوں کے زخم اب بھی ہرے ہیں، وہ اسے بھلا نہیں پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایک گھر سے 6 جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے ہیں۔ کچھ متاثرین سے جمعیت العلماء راجکوٹ کے ذمہ داران کی 4 رکنی ٹیم نے ملاقات کی، انہیں تسلی دی اور جمعیت العلماء کی جانب سے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ وفد میں مولانا نور محمد غازی صدر، مولانا محمد ایوب، حاجی محمد ابراہیم، عبد القیوم جنرل سیکریٹری اور مشتاق احمد عرف حاجی بھائی شامل تھے۔ شرکائے وفد نے جائے حادثے کے قریب ہی واقع وی سی پورہ محلہ، پنچارا روڈ، گرین چوک، سیوا وردی اور ضلع کلکٹر کے دفتر کے قریب کے حصے میں 12 خاندانوں سے ملاقات کی اور ان کی
परेशानियों से वाकफियत हासिल की। वाज़ कि इन खानदानों के 32 अफराद इस हादसे में फौत हुए हैं। इस हादसे में मुस्लिम नौजवानों ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया और बेलौस खिदमात अंजाम दी, अब भी इसके चर्चे हैं। सोशल मीडिया पर बरादरान वतन की जानिब से इनकी ये कहते हुए अब भी सताइश की जा रही है कि अगर ये नौजवान फरिश्ता बनकर ना आते तो शायद वो भी मौत की आगोश में चले जाते। लेकिन बहादुरी का मुजाहरा करने वाले मुस्लिम नौजवानों की पजीराई के ताल्लुक से हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत की जानिब से अभी तक इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात का ऐलान करते हुए दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर विजय देव ने कहा कि पोलिंग 4 दिसंबर को होगी और इंतखाबात के नताइज का ऐलान 7 दिसंबर को किया जाएगा। विजय देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कॉर्पोरेशन इंतखाबात को मुनसिफाना और शफाफ बनाना इनकी तरजीह है और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी 7 नवंबर से दाखिल किए जाएंगे और कागजात नामजदगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। कागजात नामजदगी 19 नवंबर तक वापस लिए जा सकते हैं। वोटिंग इतवार 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। काबिल जिक्र है कि इंतजाम के बाद दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 250 वार्ड्स पर इंतखाबात होंगे। काबिल दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था और जुमला 272 वार्ड थे। ताज़ा तरीन हदबंदी में वार्ड्स की तादाद 272 से कम करके 250 कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता माह ही 250 वार्डों की फहरिस्त जारी की थी। इसके तहत दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुमला 250 नशिस्तों में से 42 नशिस्तों एससी के लिए मखसूस थी, जबकि 104 नशिस्तों पर ख्वातीन उम्मीदवार और 104 मर्द उम्मीदवार होंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज श्रीनगर के अलहदगी पसंद लीडर शब्बीर अहमद शाह के यहाँ सनत नगर इलाके में वाक़े रिहायशी मकान को अस्किरियत पसंदी से मुतालिक सरगर्मियों को हवा देने के मामले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में आर्जी तौर पर खर्च कर लिया है। डायरेक्टरेट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईडी ने बोटशाह कॉलोनी में वाक़ शब्बीर अहमद शाह वल्द गुलाम मोहम्मद शाह की 21,80,000 रुपये मालियत की गैर मनकुला जायदाद को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आर्जी तौर पर खर्च कर लिया है। बयान के मुताबिक ईडी ने हाफिज सईद और दीगर अफराद के खिलाफ आईपीसी और दीगर कानूनी सरगर्मियों के एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत 30 में 2017 को दर्ज एक FIR की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू की है। बयान में कहा गया है कि दौरान तहकीकात ये बात सामने आई कि शब्बीर अहमद शाह कश्मीर में बदामनी को हवा देने के लिए पत्थरबाजी, हड़ताल, बंद, एहतजाज और दीगर तकरीबी सरगर्मियां अंजाम दिलवाने में सरगर्म अमल थे। ईडी के बयान में कहा गया है कि PMLA के तहत की गई मजीद तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ है कि शब्बीर अहमद शाह हिज़्बुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान में कायम दीगर अस्करी तंजीमों और पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से हवाला और दीगर ज़राए से फंड हासिल कर रहे थे। समाजवादी पार्टी रहनुमा आजम खान को इश्तियालंगेज तकरीर मामले में सजा होते ही इनकी असेंबली रुकनियत खत्म कर देने वाली रियासती हुकूमत अब सवालों की ज़द में आ गई है। इस पर बीजेपी मेंबर असेंबली और अपोजिशन अरकान के दरमियान अलग अलग रवैया अपनाने का इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि आजम खान से हफ्तों कबल विक्रम सैनी को भी कोर्ट से सज़ा सुनाई गई थी, मगर आज तक इनकी रुकनियत मनसूख नहीं की गई है। अब जबकि RLD लीडर जयंत चौधरी ने असेंबली स्पीकर के दोहरे मियार पर सवाल उठाने लगे हैं, तो इन्हें मकतूब भेजकर कार्रवाई की मांग की। बैकफुट पर आई हुकूमत के अहम चेहरे पार्लिमानी उमूर वजीर सफाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि जिस दिन सैनी को सज़ा सुनाई गई थी, इसी रोज़ से इनकी रुकनियत भी मनसूख मानी जाएगी। हालांकि वो ये दलील भी देते हैं कि असेंबली के सेक्रेटरीट को अभी भी अदालत के हुक्म की कॉपी नहीं मौसूल हुई है, इसलिए विक्रम सैनी की रुकनियत मनसूख करने का कोई ऑर्डर जारी नहीं हो सका है। उधर सैनी का कहना है कि इनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई है, इस ताल्लुक से इन्हें कोई इत्तला नहीं दी गई है, इसलिए वो खुद को मौजूदा असेंबली के रुकन ही मानते हैं। ताहम जयंत चौधरी ने ताज़ा पेशरफ्त पर इजहार खुशी करते हुए कहा कि ऐवान के वक़ार के लिए कार्रवाई ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब बीजेपी से मुअत्तल लीडर मलून नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ दर्ज मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। जस्टिस MR शाह और जस्टिस MM सुंदरेश की बेंच ने अर्जी की समाअत करते हुए नवीन कुमार जिंदाल को दिल्ली पुलिस की तहकीकात मुकम्मल होने तक अबूरी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। ताहम अदालत उज़्मा ने गुस्ताख जिंदाल को मुस्तक़बिल में दर्ज मुकदमात में किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। मुलजिम की इस दरख्वास्त को कबूल करने से इनकार करते हुए जस्टिस MR शाह ने कहा, हम ऐसा हुक्म जारी नहीं करेंगे जिसमें हिदायत की गई हो कि इस मामले के सिलसिले में दर्ज होने वाली तमाम FIR भी दिल्ली पुलिस को मुंतकिल की जाएंगी। हम सिर्फ इन मुकदमात को मुंतकिल करेंगे जो ज़ेर इल्तवा हैं और कोई दीगर मामला नहीं है। वाज़ के बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद हिंदुस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में भी इसके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया था।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने आज़ादी सहाफ़त की अहमियत पर जोर देते हुए हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया है कि हमें हर वक्त बाखबर रखने और मालूमात फराहम करने वाले सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। गुटेरेस ने सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के लिए इस्तिस्ना के खात्मे के आलमी दिन पर अपने प्याम में कहा कि सहाफ़ियों के अहम किरदार के बावजूद रवां साल 70 से ज़ायद सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ ज़्यादातर जराइम अभी तक हल तलब हैं और आज रिकॉर्ड तादाद में सहाफ़ियों को धमकियों के साथ कैद किया जाता है और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। कांग्रेस के सीनियर कायद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पूरे मुल्क में खामोश इनकलाब आ रहा है। लोग बड़े पैमाने पर कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस कैडर में भी नया जोश व खरोश पैदा हो रहा है। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी में न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत आमिर अली खान से मुल्क व रियासत की ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल करते हुए दिग्विजय सिंह ने इन ख्यालात का इजहार किया। दिग्विजय सिंह बहैसियत यात्री इब्तिदा से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जारी यात्रा पर अपने तजुर्बात और तासुरात पेश करते हुए कहा कि ताहाल राहुल गांधी और दूसरे यात्री तकरीबन 1300 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। शाम होते होते सब थक जाते हैं, मगर अवाम की प्यार और मोहब्बत यात्री को आगे बढ़ने में बहुत बड़ा हौसला दे रही है, जिसकी वजह से सब दूसरे दिन पैदल चलने में नई ताकत महसूस कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आमिर अली खान को बताया कि हर रियासत के अपने अलग मसाइल हैं। समाज के मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात के अवाम राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और इन्हें मसाइल से वाकिफ़ करा रहे हैं। तेलंगाना के मसाइल बिलखुसूस अक़लियतों के मसाइल से वो वाकिफ़ हैं और भी कई मसाइल हैं जिनको राहुल गांधी तक पहुँचाने की ज़रूरत है, तो इसको पेश करने की उन्होंने आमिर अली खान से ख्वाहिश की, जिस पर न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने मुसलमानों के तालीमी, मुआशी, समाजी मसाइल पर जहाँ रोशनी डाली, वहीं मसाइल की यकसुई के लिए तजावीज़ भी पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 12 नवंबर को मुजव्वदा दौरा रामागंडम के इंतजामात पर तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे अरुण कुमार, रामागंडम फर्टिलाइजर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर AK जैन के अलावा मुख्तलिफ महकमाजात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। सोमेश कुमार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के मौके पर मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। मुख्तलिफ महकमाजात के अहदेदारों को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम के मुकाम की सिक्योरिटी, अमन व ज़ब्त की सूरत-ए-हाल और दीगर इंतजामात वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी से मुतालिक ब्लू बुक के मुताबिक किए जाएंगे। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सुनील शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, सेक्रेटरी GAD शेषाद्री, इंस्पेक्टर जनरल फायर सर्विसेज संजय जैन, कमिश्नर रामागंडम चंद्रशेखर रेड्डी, कलेक्टर पेद्दापल्ली S सत्यनारायण और दीगर अहदेदारों ने शिरकत की। TRS के 4 अरकान असेंबली को खरीदने की मुबैना कोशिश के स्कैम में बीजेपी के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इल्जामात की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने फिर एक मरतबा वजाहत की है कि इस पूरे मामले में इनकी पार्टी का कोई रोल नहीं है। किशन रेड्डी ने रिमार्क किया कि तेलंगाना में TRS हुकूमत को गिराने का बीजेपी का कोई मंसूबा नहीं है और हम ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है चीफ मिनिस्टर खुद असेंबली तहलील करते हुए आदिलाना इंतखाबात किए जा सकते हैं, इसलिए वो ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी मफादात की तकमील के लिए चीफ मिनिस्टर इस मामले में बीजेपी को मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। हल्के असेंबली मंगूर के जुमेरात को मुनक्किद ज़मनी इंतखाब में 93.13% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इंतखाबी अहदेदारों ने बताया कि चौंके चंद मराकिज़ रायदही पर 10:30 बजे शब तक वोटिंग जारी रही। इसी वजह से रायदही का क़तई फ़ीसद जुमे को सुबह दस्तयाब हुआ। जुमला 2,41,805 राय दहिंदों के मुंजमला 2,25,152 वोटिंग में हिस्सा लिए हैं। अहदेदारों ने बताया कि वोट्स में 686 पोस्टल बैलेट शामिल नहीं किए गए। स्ट्रांग रूम को सुबह 4:30 बजे मुहरबंद कर दिया गया क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1:30 बजे शब पहुंचा था। आखिरी घंटों के दौरान जिला नलगुंडे में शामिल इस असेंबली हल्के में जबरदस्त रायदही देखी गई। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि वो 4 TRS अरकान असेंबली को 100 करोड़ की लालच देकर बीजेपी में शामिल होने का स्क्रिप्ट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि KCR ने सरकारी इलामिया जारी करके CBI को रियासत में बिला इजाजत कार्रवाई न करने की हिदायत दी है। इसके जरिए वो अपनी दुख्तर के कविता को दहली शराब स्कैम की तहकीकात से बचाना चाहते हैं, जबकि CBI ने इस मसले पर के कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सदर बीजेपी तेलंगाना बंडी संजय ने मीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि KCR अपनी दुख्तर के कविता को CBI की गिरफ्तारी से नहीं बचा सकते। उन्होंने कहा कि KCR ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जो वीडियो दिखाया है, इसे देखकर तेलंगाना अवाम KCR से नफरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने कांग्रेस तेलुगु देशम पार्टी के 37 अरकान असेंबली को TRS में शामिल होने की तरगीब दी थी। इसमें कई अरकान असेंबली को रियासती वज़रा के ओहदे पर फायज किया गया।
انہوں نے کہا کہ KCR کو ہائی کورٹ میں TRS کے ارکان اسمبلی کو رقم دینے سے متعلق ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔